Namaste, dear children. This is my fourth video of chapter Manufacturing Industries. In my last two videos, I have explained in detail agro-based industries and mineral-based industries. We have done that what is their role in our economy. Manufacturing industries are the strength of the country. The economic strength of the country is measured by number of manufacturing industries in the country, the quality of the products they produce. Our growth rate depends on these manufacturing industries. We have done in their importance that they are the precondition for removal of poverty and unemployment. They modernize agriculture, they reduce regional disparity, and many more. They play a very significant role in the development of the country. But on the other hand, they are also responsible for industrial pollution. एक तरफ तो वो हमारे लिए बहुत काम कर रही हैं. They are giving us all the luxuries of life, comfort of life. जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, they all are made in manufacturing industries. लेकिन इतना बड़ा रोल, इतना सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, बट ऑन द अदर हैंड दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडस्ट्रियल pollution and overall environment degradation. पूरे environment को degrade. Environment degradation will include all 4 types of pollution. So question is very simple. How industries result in industrial pollution and environment degradation? Okay, all 4 types of pollution which we are going to discuss now, completely they result in environment degradation. Environment किससे बना है? इन्हीं सारे चीज़ों से. अगर हमारा एयर पोल्यूट है, वाटर पोल्यूट है, हमारा लैंड पोल्यूटेड है, या हमारा चारों तरफ नॉइज़ पोल्यूशन है, तो overall environment gets degraded. Okay, so let's begin the 4 type of pollution which industries are responsible for. Number 1, air pollution. कोई भी चीज़ का पोल्यूशन हो बेटा, पोल्यूशन का मतलब क्या होता है? अनवांटेड चीज़ों का ज़्यादा होना. जब कोई अनडिजायरेबल, अनवांटेड, अनट्रीटेड जब चीज़ ज़्यादा हो जाती है तो वो पोल्यूशन कहलाती है. ठीक है, हमारे दिमाग में भी जब अनवांटेड थॉट्स ज़्यादा आ जाते हैं, हम ठीक से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते पढ़ाई में, तो दैट इज़ ऑल्सो पोल्यूशन ऑफ ब्रेन. तो पोल्यूशन मीन्स समथिंग अनरिक्वायर्ड, अनवांटेड, अनडिजायरेबल थिंग्स व्हेन इंक्रीज. Okay, if it is in the environment, it is environment degradation. So air pollution की definition हम कैसे लिखेंगे? Presence of undesirable gases. When undesirable gases becomes more in percentage, तो natural है जो desirable gases हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वो कम होंगी तभी तो ये बढ़ेंगी. भाई 100 में से जितनी ऑक्सीजन है, जितनी नाइट्रोजन है, उतनी प्रपोर्शन में रहना चाहिए. लेकिन जब फैक्ट्री से एमिट होने वाला स्मोक, इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन अनडिजायरेबल गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेट्रा. कहाँ से आती हैं? इंडस्ट्रीज इस एमिट देयर, जो बड़ी बड़ी चिमनीज हैं वहाँ से एमिट होता है स्मोक, एंड इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज ऑफ अनडिजायरेबल गैसेस इन द एटमॉस्फेयर. मेन कल्प्रिट इंडस्ट्रीज कौन सी हैं? हर इसमें हमको कल्प्रिट इंडस्ट्रीज का बेटा ध्यान रखना है. मतलब इंडस्ट्रीज तो ओवरऑल सारी होती हैं. जो बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं वो फिर भी एटमॉस्फेयर के या कुछ एनवायरनमेंट के नॉर्म्स को ध्यान रखती हैं. लेकिन जो छोटी छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, दे जनरली नेग्लेक्ट दीज रूल्स. Okay, and they are more responsible for air pollution or other type of pollution. So the main industries culprit which are responsible are chemical industries, paper industry, refineries,
थर्मल पावर प्लांट्स एटसेट्रा। 3-4 का नाम लिखो, बाकी एटसेट्रा। Okay, one more cause of air pollution is, one is the smoke which emits from the factories, and the one more cause is toxic leaks. When toxic, poisonous leakage of gases, कभी फैक्ट्री में से कोई पॉइजनस गैस लीक होना शुरू हो जाती है। शुरू इनिशियली में तो पता भी नहीं चलता, लेकिन इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर पोल्यूशन। भोपाल गैस ट्रेजेडी इन 1984, कितनी बड़ी ट्रेजेडी हुई थी भोपाल गैस ट्रेजेडी, जब बहुत सारी टॉक्सिक गैस लीक हो जाती है और आज तक वहाँ पर जो लोग तब उन लोगों ने इनहेल करी थी, आज भी जो नई जनरेशन्स आ रही हैं उस पर भी इसका इफ़ेक्ट है। तो हाउ मच इट हैज़ रिजल्टेड इन हार्मिंग द एनवायरनमेंट, कि इतने सालों के बाद भी उसका इफ़ेक्ट देखा जा रहा है। तो हम 2 कॉजेज़ लिखेंगे फॉर एयर पोल्यूशन। नंबर 1, the presence of undesirable gases from the industries and toxic leaks from the industries। इसमें एग्जाम्पल दे देंगे हम भोपाल गैस ट्रेजेडी का। It affects everyone in the environment, whether it is human beings or plants or animals. Everybody's health gets deteriorated when we inhale this undesirable gases. Respiratory problems for human beings, animals, plants also। आपने कभी रोड साइड के प्लांट देखे हैं, कितनी उनकी स्टंटेड ग्रोथ होती है, पतले दुबले से, उनकी हेल्दी नहीं होती है, बिकॉज ऑफ ऑल द स्मोक, एयर पोल्यूशन। एंड इवन द बिल्डिंग्स ऑल्सो स्टार्ट्स कोरोडिंग। इसका एग्जाम्पल है ताजमहल। ताजमहल जो हमारा हेरिटेज है वो येलोइश होने लग गया। उसके एक साइड में जहाँ पर ज़्यादा फैक्ट्रीज़ का स्मोक आता था, वहाँ पर हल्का सा वो जो मार्बल है वो कोरोडेड होने लग गया, ख़राब होने लग गया। तो अब वहाँ पर नॉर्म्स हैं कि अप टू 3 किलोमीटर देयर विल बी नो इंडस्ट्रीज, नो एरोप्लेन, नथिंग कैन फ्लाई ओवर द Taj Mahal, so that we can protect our this heritage and this building. So causes, what are the culprit industries and effect. Okay, second pollution is water pollution. Water pollution when untreated waste from the factories, which is called effluents, आँख बंद करके सीधा डायरेक्ट इट इज एडेड इनटू द वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज कोई भी हो, चाहे रिवर्स हो, पॉन्ड्स हो, लेक्स हो, व्हेन वी ऐड दिस अनट्रीटेड वाटर, अनट्रीटेड मीन जो फैक्ट्री का जैसा वेस्ट है, ब्लैक थिक लिक्विड इज डायरेक्टली एडेड इनटू द वाटर बॉडीज, इट रिजल्ट्स इन वाटर पोल्यूशन। ओके, अगेन only definition we have to give here. Untreated waste when it is added into the water bodies results in water pollution. Industries, almost all the industries are responsible for water pollution, but the main are paper, यहाँ पर हम paper, chemicals लिखेंगे, यहाँ पर हम paper, chemical industries, refineries, textile industries are the major culprit industries. इसी में एक पार्ट है बेटा वाटर पोल्यूशन का, थर्मल पोल्यूशन। थर्मल मीन्स व्हेन द हॉट वाटर फ्रॉम सम ऑफ द फैक्ट्रीज, हॉट वाटर इज डिस्चार्ज डायरेक्टली इनटू द वाटर बॉडीज। गरम पानी सीधा पानी वाटर बॉडीज में ऐड कर दिया जाता है और वहाँ पर रहने वाली एक्वाटिक लाइफ गेट्स डिस्टर्ब्ड। पूरा जो हमारा पानी में रहने वाला इकोसिस्टम है, एक्वाटिक इकोसिस्टम, सारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस थर्मल पोल्यूशन का मेन कल्प्रिट इंडस्ट्री कौन सी है? थर्मल पावर प्लांट्स। तो थर्मल पावर प्लांट्स जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं बाय यूजिंग कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, इसीलिए इसका नाम थर्मल पोल्यूशन रखा गया, बिकॉज थर्मल पोल्यूशन, थर्मल पावर प्लांट्स, दे
add very hot water into the water bodies, thus disturbing the entire aquatic life and aquatic ecosystem. Okay, next type of pollution is land pollution. Land pollution, ये तो हम सब ने बहुत देखा हुआ है कि कहीं कहीं पर कूड़ों का ढेर पड़ा रहता है, खुले में गार्बेज पड़ा रहता है, और किसी जगह पर हम क्या करते हैं, लैंड फिल करते हैं। कहीं पर लैंड कोई डिप्रेशन में है, वहाँ पर सारा गार्बेज डंप करना शुरू कर देते हैं कि लैंड फिल भी हो जाएगी। हमको तो लगता है कुछ समय के बाद उसके ऊपर कुछ मिट्टी वगैरह डालो, दिखाई नहीं देता। लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जो जल्दी से डिकम्पोज नहीं होता, प्लास्टिक्स, ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, आजकल कितना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट निकलता है। चार्जर खराब हो गया, फेंक दिया, फ़ोन खराब, रिपेयर तो कोई करवाता नहीं, एक दो बार रिपेयर करवाया, उसके बाद वो वेस्ट है। ठीक है, तो जितना भी ई वेस्ट है, ग्लास, केमिकल्स, जब हम इसे ज़मीन में डंप कर देते हैं तो इट मेक्स द सॉइल यूजलेस। Soil could completely useless for farming, infertile soil. So dumping of wastes, particularly biodegradable waste like glass, chemicals, e-waste, makes soil useless. और उसके बाद जब इस डस्ट के ऊपर बारिश पड़ती है, रेन वाटर विच passes through this garbage and reaches underground water also gets polluted. तो एक लैंड जो पोल्यूशन है, इससे अंडरग्राउंड वाटर, when the rain water which passes through this waste, it also pollutes underground water. So land pollution is responsible for underground water pollution also. Fourth type of pollution which the industries are responsible for is noise pollution. Noise pollution, इसमें भी वही आएगा वर्ड, अनवांटेड साउंड। जब हमें कोई अच्छा म्यूज़िक सुनना होता है, कोई मेलोडियस म्यूज़िक है, आप लोग डीजे में डांस वगैरह करते हैं, आपको वो म्यूज़िक अच्छा है, दैट इज़ नॉट पोल्यूशन। अनवांटेड साउंड, when the sound is unwanted, it is known as noise pollution. Noise pollution is unwanted sound is known as noise pollution. It causes hearing impairment. Hearing impairment को अपने आप भी अपने ऊपर टेस्ट करना है। कई बार हम 3-4 लोग जब इकट्ठा मिलकर टीवी देखते हैं, कोई कहेगा टीवी का वॉल्यूम बढ़ाना, टीवी का वॉल्यूम, और एक नॉर्मली सुन लेता है। तो इसका मतलब वी आर बिकमिंग पार्शियली डेफ। पार्शियली मतलब कुछ लिमिट तक हम डेफ हो रहे हैं। इसके लिए एक बार सर्वे किया गया था। ट्रैफिक पुलिस जो बीच में खड़ी रहती है चौराहों पे, जब उनका सर्वे किया गया तो पाया गया कि हमेशा वो गाड़ियों से घिरे हुए रहते हैं, इधर से हॉर्न बज रहा है इधर, तो दे हैव बिकम पार्शियली डेफ। जब हम लगातार ऊंची आवाज़, अनवांटेड साउंड, नॉइज़ में रहते हैं तो वो हमको कुछ लिमिट तक डेफ भी कर सकता है, पार्शियली डेफ कर सकता है। ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, इरिटेशन बढ़ सकती है। ये सब होता है हमारा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में, जब घर बन रहे होते हैं, सॉ मिल्स चल रही होती हैं, इलेक्ट्रिक ड्रिल्स चल रही होती हैं, फैक्ट्री की मशीन्स जब चलती हैं, वहाँ वर्कर्स जब काम कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल रिजल्ट्स इन नॉइज़ pollution. So industries may have very important role for the economic development of the country. They play a very significant role, but they also result in 4 types of pollution. Okay, after industrial pollution, now we have to study what are the steps taken to control these 4 pollutions which are caused by industries. Okay, industries which are responsible for these 4 pollution, if they take some steps, they can prevent or reduce the amount of pollution. Okay, let's take first what are the steps taken to control water pollution. सबसे पहले तो हमें
मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ वाटर, पानी का कम यूज करें और पानी को रिसाइकिल करें फॉर 2 to 3 स्टेजेस, रिसाइकलिंग ऑफ वाटर। और जो रिसाइकल्ड वाटर होता है उसको इंडस्ट्रीज में, एग्रीकल्चर में, फॉर इरिगेशन, उसको रिसाइकल्ड वाटर को यूज किया जा सकता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग should become compulsory feature in India. Why? Because in India rainfall is only for 3 to 4 months. It is confined to 3 to 4 months. Or rest of the year we have very less amount of rainfall. तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग अगर हम करेंगे तो हमारा ही फायदा होने वाला है। ओके, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुड बी मेड अ कंपल्सरी फीचर। ठीक है, इसको आपको मालूम होना चाहिए, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने हर घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कंपल्सरी किया हुआ है। ठीक है, और इसमें ज़्यादा एक्सपेंडिचर भी नहीं लगता। अगर हमारा पुराना घर भी है तो उसमें भी हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं बहुत कम इन्वेस्टमेंट में, तो इट विल सेव वाटर। ओके, अब आता है बेटा ट्रीटमेंट ऑफ, अच्छा पहले है ट्रीटिंग हॉट वाटर, जो हमने थर्मल पोल्यूशन पढ़ा था। थर्मल पोल्यूशन क्या था? हॉट वाटर इज डायरेक्टली एडेड इनटू द वाटर बॉडीज। तो ठीक है, हॉट वाटर है, उसे थोड़ी देर ठंडा करके फिर पानी में मिलाएं। तो ट्रीटिंग हॉट वाटर का मतलब क्या होता है? दैट हॉट वाटर शुड बी अलाउड टू कूल फॉर सम टाइम एंड देन इट शुड बी एडेड इनटू द वाटर बॉडीज, जिससे कि जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है वो प्रिजर्व कर सके ना। नेक्स्ट, जो अनट्रीटेड वेस्ट हम डायरेक्टली फैक्ट्रीज का या इंडस्ट्रीज का जो हम डालते हैं वाटर बॉडीज में, उसको कैसे ट्रीटमेंट करें, व्हाट आर द स्टेप्स, इसके ऊपर एक्सक्लूसिवली अलग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट आर द स्टेप्स फॉर ट्रीटिंग दिस अनट्रीटेड वेस्ट, ट्रीटमेंट ऑफ अनट्रीटेड वेस्ट। तो ट्रीटमेंट कैसे करना है? देयर आर 3 स्टेप्स: प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड टर्शरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट बाय मैकेनिकल मीन्स, मशीन्स करती है, पूरा काला थिक लिक्विड फैक्ट्री का वेस्ट, उसको मैकेनिकल, उसमें कोई ह्यूमन बीइंग नहीं हाथ डालता है, ओनली बाय मशीन्स, बाय मैकेनिकल मीन्स दिस प्राइमरी ट्रीटमेंट इज गिवन टू द वेस्ट। इसमें हम 4 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। स्क्रीनिंग, पहले स्क्रीनिंग होता है उस अनट्रीटेड वेस्ट का, बाय मैकेनिकल मीन्स, बाय मशीन्स उसको स्क्रीन करेंगे। स्क्रीनिंग मतलब सॉलिड वेस्ट अलग होगा और लिक्विड वेस्ट अलग होगा। उसके बाद होगा ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग मीन्स जैसे मिक्सी का काम होता है ग्राइंड करने का, जो भी वहाँ पर एक ग्राइंडर चलाया जाता है वो सारे वेस्ट को ग्राइंड कर देगा, सॉलिड लिक्विड सब वेस्ट को ग्राइंड कर रहा है। ग्राइंड करने के बाद फ्लॉक्यूलेशन, जो हल्का वेस्ट है वो फ्लॉक में इकट्ठा होकर ऊपर फ्लोट करने लगता है। फ्लॉक्यूलेशन मीन्स फ्लोटिंग ऑफ लाइट वेस्ट ऑन द टॉप सरफेस, और सेडिमेंटेशन, जो हैवी वेस्ट है वो नीचे सेडिमेंटेशन में चला जाता है। तो ये पहला ट्रीटमेंट जो है ये बहुत बड़ा प्रोसेस है विच इज़ डन बाय मशीन्स, मैकेनिकल मीन्स। ओके, इट इन्वॉल्व्स 4 स्टेप्स। फर्स्ट स्क्रीनिंग, देन ग्राइंडिंग, पहले स्क्रीन कर दो सॉलिड और लिक्विड वेस्ट को, फिर उस सॉलिड वेस्ट को ग्राइंड करा, ग्राइंड करने के बाद फ्लॉक्यूलेशन, जो ऊपर आ जाएगा, फ्लोट होगा, और सेडिमेंटेशन, वो डस्ट जो नीचे सेडिमेंटेशन में नीचे डिपॉजिट होगा। एक प्राइमरी ट्रीटमेंट हो गया। अब इसी को हमको करना है सेकेंडरी ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस में हम इस जो एक स्टेज का ट्रीटेड वाटर है इसमें अब हम क्या करेंगे, कुछ बैक्टीरियाज, प्रोटोजोआज, माइक्रोब्स डालेंगे जो कि इस डस्ट को साफ कर देता है। एक सेकेंडरी स्टेज में थ्रू बायोलॉजिकल प्रोसेस, by adding all these bacteria, protozoa, microbes, it treats the water. Third and final, tertiary treatment. टर्शरी ट्रीटमेंट में सब कुछ दोबारा किया जाता है, मतलब इसमें हम दोबारा से बायोलॉजिकल प्रोसेस
प्लस केमिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस, तीनों प्रोसेस को दोबारा से करते हैं. फिजिकल मतलब बाय मशीन्स वो दोबारा से क्लीन होगा, कुछ केमिकल्स मिलाए जाते हैं जो पानी को क्लीन करेंगे, दोबारा से कुछ बायोलॉजिकल माइक्रोब्स डाले जाते हैं, और लास्ट में हमारा पानी अगर आप उसको एक ग्लास में लेंगे तो आपको लगेगा एकदम क्लीन पोर्टेबल वाटर. लेकिन इस पानी को हम पीने के लिए तो यूज़ नहीं करेंगे, सही बात है, इतना पानी चाहे कैसा भी हो, कहाँ से आया है, लेकिन इसको हम बड़े आराम से इरिगेशन में और इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पानी की रिक्वायरमेंट है वहाँ हम यूज़ कर सकते हैं. तो बेटा ये जो 3 स्टेप्स हैं ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, इसको बेटा पहले अंडरस्टैंडिंग करो, समझो, देन इट इज़ ईजी. ठीक है. प्राइमरी बाय मैकेनिकल मीन्स इट इन्वॉल्व्स screening, grinding, flocculation and sedimentation. Secondary by biological processes. ठीक है. Tertiary again by all biological plus chemical plus physical processes. So like this, after treated water, if we will add into the rivers or any water bodies, there is no question of water pollution. Okay. Next is air pollution. एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले है चेंज ऑफ फ्यूल. फ्यूल को चेंज करो. अगर कोल यूज़ करते हैं तो उसकी जगह ऑयल यूज़ करो. अगर ऑयल यूज़ करते हैं तो उसकी जगह गैस यूज़ करो. तो चेंज इन फ्यूल विल ऑल्सो विल हेल्प इन रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन. नेक्स्ट है बेटा फिटिंग स्मोक स्टैक्स टू फैक्ट्रीज विद इलेक्ट्रोस्टैटिक पर्सपिटेटर्स. जो बड़ी बड़ी ऊंची चिमनीज होती हैं, इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पर्सपिटेटर्स लगाए जाते हैं जो स्मोक को फिल्टर करते हैं. वो डायरेक्टली जो कुछ सॉलिड पोल्यूटेंट्स होते हैं जो चिमनीज के थ्रू ऐड होते हैं एटमॉस्फेयर में, सॉलिड पोल्यूटेंट्स, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं. जिस तरह से एक चाय की छन्नी काम करती है. ठीक है. जब आप चाय छानते हैं तो पूरा वेस्ट ऊपर रह जाता है, चाय नीचे आ जाती है. सिमिलरली दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक पर्सपिटेटर्स दे फिल्टर द स्मोक. ओके. फैब्रिक फिल्टर्स लगाए जा सकते हैं. ठीक है. फैब्रिक कपड़े के फिल्टर्स विच कैन एब्जॉर्ब डस्ट एंड स्मोक एंड रिलीजेज द जो साफ हवा है उसको हवा में रिलीज करें. स्क्रबर्स का भी वही काम होता है. फैब्रिक फिल्टर्स, स्क्रबर्स, दे फिल्टर द स्मोक एंड सॉलिड पोल्यूटेंट्स जो भी होते हैं दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय दीज इलेक्ट्रोस्टैटिक पर्सपिटेटर्स, फैब्रिक फिल्टर्स एंड स्क्रबर्स, एंड टू सर्टेन एक्सटेंट दे हेल्प इन कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन. थर्ड इज नॉइज पोल्यूशन. नॉइज पोल्यूशन सबसे इसका मेन कॉज क्या था? इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रीज में जो मशीन्स आवाज़ करती हैं, जब वो चलती हैं आवाज़ करती हैं, वो इसका मेन कॉज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन था. तो इसके लिए हमको ऑल मशीन्स टू बी रीडिज़ाइंड. जितनी भी हमारी पुरानी आउटडेटेड मशीन्स हैं जो बहुत आवाज़ करती हैं उनको रीडिज़ाइन करना है. ठीक है. दोबारा से रीडिज़ाइन क्यों करना है? कि वो रिड्यूस नॉइज़ पोल्यूशन, उससे आवाज़ कम होगी और उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी काम करने की. आपको पता है कभी आपने स्कूटर वगैरह कभी चलाया हो जिसमें साइलेंसर नहीं होता तो वो कितनी आवाज़ करता है. ठीक है. तो हमको एक और यहाँ पर पॉइंट लिखना है, यूज़ ऑफ साइलेंसर्स. साइलेंसर किसमें? उन मशीन्स में जो बहुत आवाज़ करती हैं, स्पेशली जनरेटर्स जो इतनी आवाज़ करते हैं. साइलेंसर जैसी कोई नई टेक्नोलॉजी लेकर आई है और वो यूज़ ऑफ साइलेंसर्स इन दीज मशीन्स. ओके. तो नंबर 1 इज़ टू रीडिज़ाइन ऑल द ओल्ड मशीन्स विच मेक्स लॉट ऑफ नॉइज़. इससे क्या होगा? नॉइज़ पोल्यूशन कम होगा, उनकी प्रोडक्शन की जो एफिशिएंसी है इट विल इंक्रीज. साइलेंसर्स टू बी फिटेड इन those machines which makes more noise absorbing materials in the factories. ठीक है. नॉइज़ अब्जॉर्ब करने वाले मटेरियल लगाए जाते हैं फैक्ट्रीज में जिससे आवाज़ बाहर ना जाए. और हमको अगर खुद को सेव करना है तो ईयर प्लग्स कर लो. ठीक है. एयरफोन्स लगा लो तो वी कैन कंट्रोल आवर सेल्फ, वी कैन सेव आवर सेल्फ फ्रॉम नॉइज़ पोल्यूशन. सो any 5 you can pick up from here
for writing this answer, but always write by giving different headings. ठीक है, तो you will fetch more marks because in the books everything is given in one page without any proper subheadings. So give these subheadings and then you write this answer. Okay. Now, after studying what are the steps to control environment degradation, we have read that one industry which is considered as culprit industry, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, वाटर हो, थर्मल पोल्यूशन हो, नॉइज पोल्यूशन हो, सब एक इंडस्ट्री को सबने सबसे ज़्यादा कल्प्रिट माना, वो था थर्मल पावर प्लांट्स. थर्मल पोल्यूशन में भी थर्मल पावर प्लांट्स, एयर पोल्यूशन में भी थर्मल पावर प्लांट्स, वाटर पोल्यूशन में भी. दैट थर्मल पावर प्लांट्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ पोल्यूशन. तो अब जो एक थर्मल पावर प्लांट है जिसको हम कहते हैं एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसने बोला कि अच्छा सब मुझे कल्प्रिट बोलते हैं, अब मैं तुमको एक एग्जाम्पल सेट करके बताता हूँ. ठीक है, जैसे कभी किसी बच्चे को सभी टीचर्स आके डांटती हैं, तुमने होमवर्क नहीं किया, तुम मैथ्स में वीक हो, तुम इंग्लिश में वीक हो, तुम ये एवरीवन इज पॉइंटिंग ओनली वन स्टूडेंट. अगर वो स्टूडेंट चाहे तो मन में विश्वास कर ले, एक निश्चय कि नाउ आई एम गोइंग टू स्टडी वेरी हार्ड और मैं एग्जाम्पलरी बन के दिखाऊंगा एंड आई विल चेंज माई सेल्फ. उसी तरह का कुछ विचार एनटीपीसी के मन में आया. नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो सबसे कल्प्रिट इंडस्ट्री थी, उसने क्या स्टेप्स लिए फॉर कंट्रोलिंग एनवायरमेंट डिग्रेडेशन. एनटीपीसी शोज द वे. National Thermal Power Corporation has taken some steps कि इसको अब ISO की स्टैंडर्डाइजेशन मिल चुकी है कि now it is quite under all the controls of environment. बहुत कम अमाउंट में ये पोल्यूशन कर रही है. तो what are the steps taken by NTPC? Number 1, upgrading existing equipment, adopting latest techniques. सबसे पहले जो पुरानी जो हमारी मशीनरी थी, पुराना जो भी था, उसको अपग्रेड करना है. एग्जिस्टिंग जितने भी इक्विपमेंट हैं, या तो उन्हें अपग्रेड करो या उन्हें रिप्लेस करो. और अडॉप्टिंग लेटेस्ट टेक्निक, और नई टेक्नोलॉजी लेकर आना है इन द थर्मल पावर प्लांट्स. जो पुरानी मशीन्स हैं ब्रिटिश टाइम्स की, जो नॉइज़ पोल्यूशन कर रही हैं, वाटर एयर पोल्यूशन कर रही हैं, उनको अपग्रेड करना है और रिप्लेस करना है. एंड अडॉप्टिंग न्यू टेक्निक्स और न्यू टेक्नोलॉजी. तो सबसे पहले काम होता है न्यू टेक्नोलॉजी एंड अपग्रेडिंग द ओल्ड मशीनरी. नंबर 2, मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशन एंड मैक्सिमाइजिंग एश यूटिलाइजेशन. वेस्ट को मिनिमाइज करो, मिनिमाइजिंग द वेस्ट, और जो वेस्ट निकलता है उसका यूटिलाइजेशन करो. इसका वेस्ट क्या है? ऐश, उसको यूटिलाइज करना है. मिनिमाइजिंग द वेस्ट एंड मैक्सिमाइजिंग द यूज ऑफ ऐश. सबसे आसान तरीका है एफॉरेस्टेशन. उन्होंने अपने एनटीपीसी प्लांट के चारों तरफ एक रो ऑफ ट्रीज लगा दी, शेल्टर बेल्ट, जिससे कि जितना भी पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन आ रहा है, वो सारा एब्जॉर्ब्ड बाय दिस वॉल ऑफ ट्रीज. तो एफॉरेस्टेशन के लिए उन्होंने स्पेशल व्हीकल्स भी खरीदे, जो फटाफट व्हीकल चलता रहता है, वो ड्रिल करता है, प्लांट अंदर ड्रॉप करता है, प्लांट लगता है और आगे चलते हैं. ये नहीं कि एक आदमी खोद रहा है, फिर पौधा डाल रहा है, फिर मिट्टी डाल रहा है, इतना स्लो प्रोसेस नहीं किया. दे आर स्पेशल इफ व्हीकल्स वर परचेज फॉर प्लांटेशन. सो एफॉरेस्टेशन किया, जिससे कि बहुत अमाउंट ऑफ एयर पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड.
Next is reducing environment pollution through ash pond management, ash water recycling system. Ash pond management क्या होता है बेटा? हमको मालूम है कि थर्मल पावर प्लांट्स कोल यूज़ करेंगे या पेट्रोल यूज़ करेंगे या नेचुरल गैस यूज़ करेंगे और थर्मल एनर्जी बनाएंगे. तो कोल यूज़ करने के बाद क्या है, बहुत अमाउंट ऑफ ऐश बचता है. ऐश जो होता है इतना माइन्यूट फ्यूम होता है, इट इज़ रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर एंड एयर पोल्यूशन करता है. तो उस ऐश को इन्होंने ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट में क्या है, बड़े बड़े पॉन्ड्स बनाए, उसको पानी से मिलाकर उसको रखा, जिससे कि वो जो एयर पोल्यूशन में हवा में रिलीज ना हो, और पानी में उसे रखा. और उस पानी का उसे हम ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट बोलते हैं. उस पानी का अब थोड़ा सा काफ़ी सालों के बाद डिसएडवांटेज भी देखने को मिल रहा है, दैट इट इज़ पोल्यूटिंग अंडरग्राउंड वाटर ऑल्सो. लेकिन चलो, अभी उन्होंने ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट किया, जिससे कि ऐश इज़ नॉट डायरेक्टली रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर. ऐश वाटर फॉर रिसाइकलिंग सिस्टम, ऐश वाटर से वाटर को रिसाइकल करना भी उन्होंने सीखा और यूज़ किया. लास्ट इज मॉनिटरिंग ऑल इट्स पावर स्टेशंस, डाटाबेस, रिव्यूज़. एक पावर प्लांट एनटीपीसी के तो इतने पावर प्लांट्स हैं. वी हैव मोर देन 300 थर्मल पावर प्लांट्स इन इंडिया. इट इज़ अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. तो इन्होंने हर अपने थर्मल पावर प्लांट की मॉनिटरिंग करी कि सभी लोग ये स्टेप्स कर रहे हैं कि नहीं, और उनसे टाइम से रिव्यूज़ मांगे कि कितना अब उन्होंने पोल्यूशन को चेक किया है, कितना कंट्रोल हो पा रहा है पोल्यूशन. सो मॉनिटरिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. जब सारे थर्मल पावर प्लांट्स, इफ़ दे विल टेक ऑल द स्टेप्स, देन they will certainly help in reducing environment pollution और environment degradation. तो NTPC के ऊपर exclusively बेटा क्वेश्चन पूछ सकते हैं 5 मार्क्स में, that what are the steps taken by NTPC for controlling environment degradation. Okay, so these 5 steps I have written in very brief, and the keywords you can write these 5 steps for this answer. Okay, I was supposed to do exercise questions in this video, but I think it has already become too long. So exercise questions and previous year board questions and map skill of this chapter I will take in my next video. Okay beta, thank you so much. Have a wonderful day.